So, hello everyone, this is Mohit Sharma in front of you, and I'm here for the GS. So, we will cover the GS part here, and that is for the NDS, CDS, CAPF and AFCAT. जीएस की अपनी ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। मैं अगर बात करूँ तो जीएस सीडीएस के अंदर एक अपना अलग लेवल रखता है, एनडीए के अंदर अपना अलग रखता है और बाकी दोनों एग्जाम्स के अंदर भी अपना अलग अलग लेवल रखता है। जीएस को किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं, सारी बातों को हम जानेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। So now, let me introduce myself. I am Mohit Sharma. I have completed my BCom from Indira Gandhi National Open University, as well as I have completed my MA from Jain University, Bangalore. अगर मैं बात करूँ, I'm from Noida, and apart from my residing area, I have qualified the examination of UPSC CDS from 2021 and 2021. Written exam I have qualified. After that, I went for the SSB. Then there was some issues due to that I won't clear the SSB. So that's why I'm here. I used to follow my passion. My passion is teaching. That's why I'm in front of you. As well as I also worked with the Joint Academy after my clearing examination. Then I worked with the Indian Army at Assam for on the mission Sadbhavana that is with like 21 Madras and 29 Punjab at Tamalpur district at Assam nearby Guwahati on Super 30 projects for the NDA and CDS, and I was the senior faculty of the GS there as well as the program coordinator. So this was all little bit introduction about me. Now we will discuss something else like what are the qualities by which I am here or I will be good for the particular subjects and all because I've qualified the same examination that is CDS. So I know what are the problems that that will become in front of you and how you can clear the examination, how you can face up that problems, how you can put out of your situations. So all over the situation जितनी भी परेशानियां आएंगी वो सब मैं जानता हूँ और उन परेशानियों से कैसे निकलना है, क्या तरीका होना चाहिए, I'll guide you in that. Apart from that I'm having an on-ground experience with Indian Army, so this will also help you in your SSB, as well as there are some trips key how the behavior they want, how the officer like qualities they want, how the person should be like that. जितना भी टाइम मैं वहाँ रहा हूँ मैंने इंसान को वहाँ पर ऑब्जर्व किया है, ऑफिसर्स को ऑब्जर्व किया है, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे वो मेजर जनरल हो या अदर ऑफिसर्स हो. सो आई नो व्हाट आर द ग्रांड सिचुएशन एंड व्हाट दे वांट, एग्जैक्टली व्हाट आर्मी वांट, व्हाट नेवी वांट, व्हाट एयरफोर्स वांट. So I've talked with the officers and I'm having that experience, so I will share with you. Apart from that, I'm also having good communication skills by which I used to communicate with my students, and this is good for them, even me also. And I'm having a 4 year of experiences. In my 4 year of experiences, I joined different academies, and out of which I got the different level of experience in that I'll share with you. So if I'll move to that, like why do I choose an academy? That is just because obviously they are having a very good relationship between them and employees, so it's really good, obviously. And as everybody knows that it's India's largest online platform. It's like a revolution in the ad tech, and that's why you used to call it. It's a best platform. So for the online teaching, and this is the best way by which we can connect to the all over India. Like if you want to connect all over India, it's a best time to connect with the Unacademy, and definitely we can grow ourselves also as well as the students' career also. So it's really good. Apart from that, that is my content plan that we will do and we will go through with that. That is history, that is geography, polity, economics, and current affairs. This is the 100-hour plan, which is like 24 hours for the history, 35 hours for the geography, 30 hours for the polity, 10 hours for the economics. अब ये टाइम का डिवीजन ऐसा क्यों है, हिस्ट्री में कम क्यों है, ज्योग्राफी में ज़्यादा क्यों है, पॉलिटी में क्यों है, that I'll let you know. In history, we will use to cover for the basically we'll focus on the ancient and the modern portion. लगभग कुछ सालों में आंकड़े देखे गए हैं कि लगभग एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री. मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मल आते हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. दैट्स व्हाई आई गिव द 25 days and these are enough. So for the 25 days, generally how we will cover the syllabus in 25 days, we will लगभग approximately we will give 12 hours to the modern history, and apart from that 12 hours, 8 hours we will give to the ancient history and the 5 hours to the medieval history. We will cover our syllabus like that. So this is 25 hours syllabus in history. Geography, it's really important. We need to give and we need to focus on that as per the situation. So as per the geography, world geography concepts are there and as well as the Indian geography concepts are there. We have to cover them. 20 hours we have to give.
and that is obviously we have to decide the time as per the time also. Apart from that, polity I give the 35 hours just because it is only the subject by which you can score high. ठीक है, it is only the subject by which you can score high, and it is the subject in which you can grow high. Why it is so? Just because of that, because the direct question has been asked from the Indian polity. If the questions are coming from the history, chances हैं कि तुम उसे ना कर पाओ. Geography से आ रहे हैं, chances है तुम ना कर पाओ. But polity से आ रहे हैं, तो out of the 15 question, definitely you can do very easily 13 questions if you are having good command on the syllabus. So we will talk about the history in today's class, and ancient history का हम portion करने जा रहे हैं. So apart from that, let's have an introduction of the ancient history. So ancient history, why it is important? Ancient history, एंशियंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इसलिए भी रही है क्योंकि भारत का अपना एक अलग इतिहास रहा है. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया, तो मेरी इंडिया यानी कि भारत, टुडे वी यूज्ड टू कॉल इट भारत. सो इट्स हैविंग डिफरेंट कल्चर. हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि हम डाइवर्सिटी से भरे रहे हैं. वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल, वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बाय विच वी आर कनेक्टेड विद द different different scenarios. So this is all about that ki how our India was working there on that time, how is India's, how the different things were there. Apart from that, कि India is also started agriculture, how the agriculture situation was that, like कि agriculture के अंदर कैसी कैसी situations रही हैं, किस तरीके से हमने डील करा है, किस तरीके से हमने आपको, हमने गैदरिंग से, हमने फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर में अपने आप को कन्वर्ट किया है. सो दैट इज़ द बिग थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू गैदर द थिंग्स, देन वी यूज टू प्रोड्यूस द थिंग्स. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ डू वी डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट कि नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी हैव कवर्ड, कि कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है, किस तरीके से हम जिया करते थे, हाउ द टाइप ऑफ लिवलीहुड ऑन दैट टाइम, एंड द कंडीशंस ऑफ द विलेजेस, सिटीज़, एंड देयर वर मैनी थिंग्स दैट वी हैव टू कॉन्टेक्ट लाइक अबाउट द फार्मिंग, स्पिनिंग. तो किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री रही है, इन सबको जानना है अगर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंशिएंट हिस्ट्री टू नो ऑल द थिंग्स. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू स्टडी द एंशिएंट हिस्ट्री. दैट इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस एज पर द सिलेबस. बिकॉज एज यू नो दैट कि अगर आपको किसी भी प्रेजेंट में वर्क करना है तो यू हैव टू नो द पास्ट, एंड दिस इज द पास्ट. हिस्ट्री का भी अपना एक पास्ट होता है, दैट इज द एंशिएंट. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. Apart from that, there are some sources by which we can go through with the ancient history. That are the material remains, that means archaeological sources. जब आप खुदाई करते हो basically, when you used to go and mount some things, and there are the systematic manner कि एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद आप खुदाई करते हो. एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, जिस तरीके से इस फोटो में दिखा रखा है कि दे आर जस्ट फाइंडिंग समथिंग अंडर द ग्राउंड. दे आर फाइंडिंग वन लेयर, देखा फिर देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर. तो कुछ ना कुछ मिलता है इनको. सपोज करो डायनासोर का अंडा यहाँ रखा हुआ है, डायनासोर के अंडे में देखा भाई इन लोगों ने कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, या कोई पुराना घड़ा मिल गया, कोई पुराना कोई और चीज़ मिल गई, कॉइन्स मिल गए. तो जितनी भी चीज़ें ये मिल रही हैं ज़मीन के अंदर, जो एक के बाद एक लेयर के अंदर ये देख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, दैट आर डिपेंडेंट अपॉन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकेंड सोर्स दैट इज़ द कॉइन्स. ऑब्वियसली गुप्ता के टाइम पे कुछ कॉइन हुआ करते थे, है ना. मगध एम्पायर के टाइम पे कुछ कॉइन हुआ करते थे. तो उन कॉइन्स पे जो इमेज है, जैसे कि कुछ कॉइन्स पे पशुपतिनाथ की इमेज देखी गई है, कुछ कॉइन्स पे किसी किंग या राजा या फिर किसी ब्रिटिशर्स की इमेज देखी गई है. तो वो कॉइन ये बताते हैं कि वो किस टाइम पर यूज़ हुए थे, वो किस टाइम से रिलेटेड थे, वो किस टाइम से कनेक्टेड थे. तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई कॉइन्स किस हुए. जैसे कि आज अगर इंडिया में किसी कॉइन के पीछे 1999 लिखा हुआ है, ₹1 कॉइन के पीछे, तो अगर आज उसको बच्चा से 100 साल बाद देखेगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये 1999 का कॉइन है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, कुछ इपोग्राफीज भी हैं, यानी कि अशोका समुद्रगुप्त ने कुछ इस तरीके से फोटोग्राफी वगैरह करी थी. इसी से मुझे करंट अफेयर का क्वेश्चन याद आया, दैट इज सांची. और आज के टाइम पे पहली सोलर सिटी बन चुकी है सांची. इट इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी, इट इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया, दैट इज सांची. सब सांची हम इसको बोलते हैं. सो इट इज़ ये कॉइन के थोड़े सोर्सेज हैं इस तरीके से, एंड दीज आर सोर्सेज ऑफ द एपिग्राफी, लिटरेसी सोर्सेज वगैरह. उससे पहले हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज तो हम बचपन से पढ़ते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेदास. हमारे वेदाओं के अंदर न जाने कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं. ऋग्वेदा के अंदर अलग है, सामवेदा के अंदर अलग है, अथर्ववेदा के अंदर अलग है, यजुर्वेद के अंदर अलग है, हर वेद के अंदर अलग अलग है ना. उपनिषद के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे सत्यमेव जयते एक वर्ड है, दैट वाज आस्क्ड इन एनडीए. सत्यमेव जयते की वर्ड है जो एनडीए पूछा गया था, बोला गया था कौन से उपनिषद से लिया गया था. द आंसर वाज मुंडका उपनिषद. तो मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते वर्ड लिया, जो आज एक बहुत बड़ा मोटो है हमारे लिए.
तो ये चीज़ें हमने सारी उपनिषद वगैरह से उठाई हैं। ये एक हमारे कुछ फॉरेन सोर्सेज भी रहते हैं। फॉरेन सोर्सेज के बारे में हम जानते हैं बेसिकली कि कुछ बाहर से कोई ट्रैवलर आ रहे हैं, ट्रैवलर आके इंडिया में विजिट कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया में जो देखा तो उस हिसाब से उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। तो उन बुक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं भाई कैसा है। ऑब्वियसली वी कांट डिपेंड अपॉन दैट कि हो सकता है किसी ट्रैवलर के साथ किसी किंग के रिलेशन अच्छे रहे हो तो उसने उसके बारे में अच्छी बातें लिखी हो, उसके साथ किसी के साथ बुरे रिलेशन रहे हो तो उसने बुरी बातें लिखी हो। तो वो डिपेंड करता है किंग्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है फॉरेनर सोर्सेज के ऊपर। बट कहीं ना कहीं उन फॉरेन सोर्सेज जब हुए हैं हमारे कोई भी, जैसे फाहन सिंह आया है ना, तो सूत्र सिंह आया है, तो बेसिकली इनके टाइम पे हमने देखी हैं चीज़ें कि कौन कौन आ रहा है, क्या क्या चीज़ें रही हैं। हर्षा पीरियड के टाइम पे है, गुप्ता पीरियड टाइम पे आए हैं, तो 5th सेंचुरी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, 7th सेंचुरी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो उन चीज़ों के टाइम पे हमें ये जानना है कि किस तरीके से वो सिनेरियोज आगे रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा हमारी कुछ चीज़ें भी रही हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कुछ एजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक पैलियोलिथिक एज है। इट इज़ द अर्लीस्ट एज, ठीक है। इसको 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC के अंदर इसको हमने माना जाता था। बेसिकली इसे हंटिंग के लिए बड़ी फेमस थी, फूड गैदरिंग के लिए बड़ी फेमस थी। हम यहाँ पर फूड को प्रोड्यूस करना नहीं जानते थे। पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि फार्मिंग जो थी क्या वो पैलियोलिथिक एज के अंदर थी या नहीं थी, तो द आंसर था उसका नहीं थी, बिकॉज फार्मिंग का एक जो स्टार्ट था वो फूड प्रोड्यूसिंग का वो बाद में स्टार्ट हुआ है। बट हम यहाँ पर फूड को गैदर करते थे, जानवरों को मारते थे, हंटिंग करते थे और वहाँ पर अपना फूड को ओवरऑल गैदर्ड करते थे। इसके अंदर दो एज बड़ी ही फेमस है, दैट इज़ द फिलिस्तीन एंड होलोसीन। अभी जो रिसेंट एज चल रही है दैट इज़ द होलोसीन, तो 10,000 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, बट 10,000 साल से पहले जो एक एज चल रही है दैट इज़ द फिलिस्तीन। इन दोनों के पेपर में एक एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रही हैं, जैसे कि इसकी जो अपनी ही एक अलग खासियत है, कुछ साइट्स पाई गई हैं जहाँ पर अलग अलग साइट्स पे इसके हमें एविडेंसेस मिले हैं। दैट इज़ द सोन वैली इन पाकिस्तान, पंजाब में भी पाए गए हैं, कुछ पंजाब पाकिस्तान में है, कुछ पंजाब इंडिया में है, कश्मीर के अंदर भी चीज़ें पाई गई हैं, थार डेजर्ट में चीज़ें पाई गई हैं, वेलन वैली में चीज़ें पाई गई हैं, मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये, अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग एविडेंसेस मिले हैं हमें उन चीज़ों के बारे में। देयर आर सम इम्पोर्टेंट साइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजोलिथिक एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था, बट इट इज़ एन स्टार्टिंग फेज। पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, बट हाँ कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग फेज था, ठीक है। 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक का टाइम था, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये होलोसीन के टाइम पे आ रहा है ना। तो इसके टाइम पर हमने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। इसके लोकेशंस हैं आदमगढ़, ठीक है, भीम बेटका, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, भीम बेटका। अप एंड बागोर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर हम माइक्रोलिथिक टूल्स यानी कि ब्लेड्स, पतले पतले टूल्स, छोटे छोटे इस तरीके के टूल्स हम यूज़ कर रहे थे जो कि हमारे काम में आ रहे थे, एरोज वगैरह, जिससे कि हम हंटिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। क्योंकि मोटे मोटे टूल्स को उठाना, कैरी करना बड़ा मुश्किल था। अब इंसान क्या करेगा, टूल्स को अपने जेब में रख कर भी जाएगा और काम करेगा। ऑब्वियसली उस टाइम पे पॉकेट्स नहीं थी, बट जहाँ भी उनके पास सोर्सेज थे वो पतले टूल्स को कैरी करना, हंटिंग करना बड़ा आसान था। एंड शार्पली उसको कट भी कर सकते थे किसी को वो। सो दैट वॉज अ टाइम। सो अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूलिथिक की भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। यहाँ पर हमने बेसिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया चीज़ों को, हमने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। यहाँ हमने पॉलिश टूल्स स्टार्ट किए, ओल शेप्ड टूल स्टार्ट किए, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया हमने यहाँ पर। तो धीरे धीरे हमने चीज़ों को, हम फूड प्रोड्यूसर बने फूड गैदरर से, जो मैंने अभी बताया था उनको। चालकोलिथिक एज, इट इज़ द मोस्ट एडवांस एज। मैं बताता हूँ आपको, ये मेटल एज के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो सबसे पहला मेटल फाउंड किया गया था वो था कॉपर। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल दैट वॉज आस्क्ड इन एनडी अगेन, ठीक है। दिस वॉज आस्क्ड इन एनडी अगेन। कॉपर एक मेटल था जो कि राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश, जॉबरे, महाराष्ट्र, बेसिकली ये कुछ ऐसी जगह थी, जॉर्वे यहाँ पर पाया गया। ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा नॉर्वे का भाई जॉर्वे है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। यहाँ पर कुछ मड ब्रिक्स पाई गई थी जहाँ पर जिनसे चीज़ें बनी हुई थी। कॉटन के कुछ एविडेंसेस थे यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग बिलीव करते थे यहाँ लाइफ आफ्टर डेथ थ्योरी में, यानी कि पुनर्जन्म की थ्योरी में। ये कुछ इतिहास रहा है मेरे भारत का, इट दैट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ और इंडियन कल्चर। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री। सो आज की वीडियो में हम इतना कवर करते हैं। बाकी हम आगे के टॉपिक्स जो हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन और अदर टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।